Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed about rational numbers. What are the rational numbers? How to write rational numbers and what are the negative and positive rational numbers. Okay, and in today's session we are going to discuss more about rational numbers, like how to represent rational numbers on a number line and how to compare rational numbers. So these all we will discuss today. Okay, so let's start today's session. Okay. So first is representation of rational numbers on number line. As we know that in number system every number we can locate on a number line. Okay, so till now we have read about integers. Okay, हमने integers पढ़े हैं and also we know how to represent integers on a number line. Okay, so for number line what we do first, we draw a straight line with the help of scale. Okay, and at equal distance we have to take mark like this. Okay, so in the mid of this number line we take a point as 0. Okay, so to represent integers, because we know that integers are the collection of positive number, means whole numbers, and negative numbers. Okay, so to the left of this 0 negative numbers lie and to the right of this 0 positive numbers lie. Okay, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Okay, similarly to the left of 0 negative numbers, means before 0 minus 1, then before minus 1 minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Okay, and so on. Okay, so as we move from left to right, the value of numbers increases. Okay, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ नंबर्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, राइट में जो नंबर है प्रीवियस नंबर के राइट में जो नंबर होगा दैट इज ग्रेटर देन प्रीवियस वन. लाइक 2 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज 2 इज राइट टू द 1. ओके, सिमिलरली 3 इज ग्रेटर देन 2 और 6 is greater than 1. Okay, so as we move from left to right, the numbers on the number line increases. Okay, and opposite it, if we move right to left, means in this direction, so the value of numbers decreases. So what does it mean? If we take this minus 5, that is less than minus 4. Why? Because this minus 4 is to the right of minus 5. Okay, तो नंबर के जो राइट साइड में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे. ओके, सिमिलरली माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 4, माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 4, माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 6. यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स आएंगे वो लेफ्ट नंबर के से बड़े होंगे. ओके, मतलब जब आप राइट से लेफ्ट जाएंगे नंबर लाइन पर तो नंबर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके, इसका मतलब जितना लास्ट में नंबर होगा दैट विल बी लेस. लाइक minus 8, if we take minus 8 that is last here, so minus 8 is smaller than all these, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4. Okay, means minus 8 is here smallest one. Okay, अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. तो रैशनल नंबर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. जैसे कि आपके इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर आपके 0 के राइट हैंड साइड में और नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं. सो सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. If suppose we have a rational number, positive rational number 2/3. Now we have to locate it on number line. Okay, so as we know this is a positive rational number,
So it is very clear from here, this will lie to the right of 0. Okay, if suppose this point is 0, okay, so to the right of 0 where it will lie? So it will decide by its denominator. Here denominator is 3 and numerator is 2, means numerator is less than denominator. Okay, this numerator is less than denominator. So we know that we have learnt in fraction what, if numerator is less than denominator, that fraction always lies between 0 and 1. ओके, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं. ओके, सो दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. इतना क्लियर है? ओके, अब देखिए इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? 3. सो वी विल डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इन 3 इक्वल पार्ट्स. ओके, एज much here the denominator is, we will take as much part between 0 and 1. Okay, so here the denominator is 3, so we will divide the gap between 0 and 1 in 3 equal parts. Okay, so suppose this is one part, this is second and this is third, means here is 1. Okay, here is 1. 0 to 1 के गैप को हमें जितना डिनोमिनेटर है उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हमने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में. ओके, सो दिस वन विल बी 1/3. ठीक है, 1 यूनिट के आप 3 पार्ट्स कर रहे हैं तो फर्स्ट इतना पार्ट आपका क्या होगा? 1/3. देन 2/3. ओके, 2/3 के बाद क्या आएगा? 3/3. So 3/3 is nothing but the 1. Okay, if you divide this 0/3 you will get 0 only. Okay, so 2/3 means will lie here. Okay, suppose if we want to represent 8/3. So here the numerator is greater than denominator. So what we do in such cases? So as the denominator is 3, so after 0 you will take the first mark as 1/3, then second 2/3, then 3/3, then it will be 4/3, and this one 5/3, then 6/3, 7/3, and this one 8/3. Okay, so this point will represent 8/3. ओके, तो जितना भी आपका डिनोमिनेटर है वही आपको यहाँ पर हर एक पार्ट का डिनोमिनेटर लेना है. 0/3 इज 0. ओके, 0/3 के बाद क्या आएगा? 1/3. देन द सेकेंड मार्क विल बी 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 एंड 8/3. ओके, न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर से छोटा था, इसलिए यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि ये नंबर किसके बीच में? 0 to 1 के बीच में लाई करेगा. ओके, इसलिए 0 और 1 के बीच के गैप को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटिंग 1/3 एंड सेकेंड पार्ट 2/3. ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. Okay, let's take an example of negative rational number. If suppose the rational number is minus 2/4. Okay, this is a negative rational number, minus 2/4. Now we have to represent it on number line. Okay, so as we know this is negative, so it will lie to the left of 0. Okay, so if suppose 0 is here, so this number will lie to this side. Okay, now see here the denominator is 4 and numerator is 2. So numerator means 2 is less than 4, numerator is less than denominator. So this number
this rational number lie between 0 and -1. -1 why? Because it's a negative rational number. ओके जैसे कि फ्रैक्शन के केस में, फ्रैक्शन आपके क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन के केस में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में वो नंबर लाई करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। ओके सपोज सी दिस इज योर -1, this point is 0 and this point is -1. Okay, so here the denominator is 4. That means we have to divide this gap between 0 and -1 in 4 equal parts. Okay, suppose this is first and this is second and this is, so see 1 2 3 4. We have divided this gap in 4 equal parts. Okay, between 0 and -1. So see, before 0 the first part will be -1 upon 4. Okay, and the second one will be -2 upon 4, then -3 upon 4, then -4 upon 4, and -4 upon 4 is nothing but -1. Okay, so since we have to represent this one, it means this point is lying here. ओके तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसका मतलब ये नंबर आपका 0 एंड -1 के बीच में लाई करना है। तो आप कहीं पर भी 0 एंड -1 को नंबर लाइन पर मार्क कर लीजिए, बट उसके बीच का जो गैप है उसको आपको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जितना कि डिनोमिनेटर है। यहाँ 4 था इसलिए इस गैप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट मार्क आपका क्या है? -1 upon 4, second -2 upon 4, then third is -3 upon 4 and the last that is -1 is -4 upon 1. Okay, so this, suppose if you have a rational number, negative rational number -6 upon 4. Okay, so here numerator is greater than denominator, then what we do in such cases? So you have to take a mark 0 on number line. At equal distance you take marks like this. Okay, so start from here 0. If we take the denominator 0 of 0, so it will be 0 only. 0 is 0 upon 4. Okay, first point is minus after 0. So before 0 will be -1 upon 4, second -2 upon 4, -3 upon 4, -4 upon 4, then -5 upon 4, -6 upon 4, then -7 upon 4. We have to represent this number, so it means it is lying here. Okay, so this is how we represent negative rational number on number line. जितना आपका यहाँ डिनोमिनेटर है बिफोर 0 आपको उसी डिनोमिनेटर से पार्ट को शो करना है। ठीक है, यहाँ 4 है इसलिए 0 upon 4 इज 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए वही नंबर आएगा 0। ओके, सो बिफोर 0 -1 upon 4, -2 upon 4, -3 upon 4, -4 upon 4, -5 upon 4, then -6 upon 4. Now next is comparison of rational numbers. How to compare rational numbers? Okay, comparison exists when equality is not exist. कंपैरिजन कब आता है? हम कंपेयर कब करते हैं? जब इक्वलिटी नहीं होती है, मीन्स कुछ ग्रेटर होगा कुछ लेस होगा। तो रैशनल के नंबर के केस में भी ऐसा है, कुछ रैशनल नंबर्स आपके बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। हाउ यू विल डिसाइड विच वन इज ग्रेटर और लेस? ओके, सो लेट्स सी, इफ सपोज वी हैव गिवन 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लाइक 1 upon 2 and 3 upon 2. Since these two are positive rational numbers and we know that positive rational numbers nothing but the fractions, and we have learned how to compare fractions if the denominators are same. Okay,
So this is the first case. This is the first case when you have given two positive rational numbers. Then how to compare them? See, since their denominators are same, so we will decide here which one is greater by looking the numerator. Whose numerator is greater, the whole rational number will be greater one. Okay, क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है आपके, ठीक है, तो हम न्यूमरेटर से चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा, ग्रेटर होगा. ओके, सो एज वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2. ओके, ये कैसे, लाइक रैशनल नंबर से. क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है. तो जब भी आपको लाइक रैशनल नंबर्स दिए जाएं तो वहाँ पर आपको किससे डिसाइड करना है, उनके न्यूमरेटर की वैल्यू को देखकर डिसाइड करना है. न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन अदर, देन द होल रैशनल नंबर विल बी ग्रेटर देन अदर. ओके, तो यहाँ पर 3 क्या है, 1 से बड़ा है, इसलिए 3/2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 1/2. Okay, suppose one more example. If you have 7/8 and 9/8, so here also denominators are equal, means these are the like rational numbers. Okay, so we will decide here by looking the numerator part. Since 9 is greater than 7, that's why the whole fraction 9/8 will be greater than 7/8. Okay, so this is the first case when you have given the positive rational numbers with same denominators. If suppose denominators are different, then how will you compare them? Let's see. So second case is, suppose the rational numbers are 3/5 and 1/3. See, here the denominators are different. These are not the like rational numbers. Since these are positive, so these are nothing but the fractions. ये क्या हैं? fractions ही हैं आपके. ओके, और fractions को unlike fractions को compare करना आपने सीखा है. ठीक है, कैसे compare करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, unlike fractions को like fractions में change करते हैं. मीन्स उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का. ओके, सो सेम हियर वी विल डू, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 3, दैट इज 15. 5 and 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा. तो देखिए 3/5 का हम ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर 15 हो. सो 5 3s are 15, so we will here multiply by 3 in both part, numerator as well as in denominator. So same we have to do here, 1/3, so we have to make this 3 as 15 by multiplying by 5. हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो see 3 3s are 9 and 5 3s are 15. Here 5 into 1 is 5 and 3 5s are 15. Okay, so these are nothing but the equivalent rational number of these rational numbers. Actually they are equal. Why? Because they are equivalent to each other. ये क्या है, equivalent rational number है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके equivalent rational number से डिसाइड करेंगे. देखिए अब दोनों like rational number में चेंज हो गए क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को देखना है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट विल बी द ग्रेटर वन. सो सी 9 इज ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई 9/15 विल बी ग्रेटर देन 5/15. ओके, 9/15 ग्रेटर होगा किससे, 5/15 से. इसी तरीके से तो 9/15 किसका इक्विवेलेंट है, 3/5 का. इसका मतलब 3/5 इज ग्रेटर देन 1/3. ओके, 3/5 इज ग्रेटर देन 1/3. तो जब भी आपको अनलाइक रैशनल नंबर्स दे रखे हो, मीन्स उनके डिनोमिनेटर्स
डिफरेंट दे रखे हों तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो जाएंगे, देन यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग देयर न्यूमरेटर पार्ट। इफ द न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन द होल rational number will be greater one. Okay, so this is the second case. If suppose one rational number is negative and another is positive, so which one is greater? See, suppose if we have 1/3 as negative rational number and second rational number is positive, suppose 2/4. One is negative, another is पॉजिटिव, सो यू हैव टू कंपेयर दीज टू। तो नंबर लाइन पर जो राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में नंबर लाई करते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। ओके, राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर हैं वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है व्हेन वी गो from left to right on the number line, the value of numbers increases. Okay, it means positive numbers are bigger than negative numbers. Okay, so same here, 2/4 is positive minus 1/3 is negative, so it is obvious this positive will be greater than this negative. Okay, so 2/4 is greater than minus 1/3. तो जब भी आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दे रखा हो तो आपको बिना कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक किए आपको सीधे डिसाइड कर लेना है कि पॉजिटिव इज ग्रेटर दैन नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा। सो फोर्थ केस अराइज व्हेन वी हैव गिवन टू नेगेटिव रैशनल नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 5/3 एंड -2/3. Suppose we have given -5/3 and -2/3. So here we have to decide which one is greater. कौन सा बड़ा होगा, कौन सा रैशनल नंबर, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है तो कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस नेगेटिव साइन को पहले हम इग्नोर कर देते हैं। नेगेटिव साइन को नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर्स को, मीन्स 5/3 एंड हियर 2/3. Since the denominators are same, so these are the like rational numbers. So we will decide here by looking the numerator part. So 5 is greater than 2. That means 5/3 is greater than 2/3. ओके, तो जब भी हमें नेगेटिव रैशनल नंबर दिए जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर्स को यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से डिसाइड करना है। तो न्यूमरेटर 5 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 5/3 होल विल बी ग्रेटर देन 2/3. ओके, अब यहाँ ऑर्डर डिसाइड हो गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव साइन लेंगे -5/3 हियर -2/3, तो ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ 5/3 इज ग्रेटर, अब उल्टा होकर ये क्या हो जाएगा, -5/3 इज लेस देन -2/3. सी ऑन नंबर लाइन 100 इज ग्रेटर देन 99. 100 is greater than 99 because 100 lies to the right of 99. That's why it has more value than 99. Okay, if suppose we take -100 and -99, now which one lies to the right side? -99 lie to the right of -100, so it has more value, means -99 is greater than -100. तो देखिए, जब ये नंबर्स पॉजिटिव थे तब ग्रेटर का साइन 100 की तरफ था, जब इनमें नेगेटिव मीन्स माइनस साइन लग गया तो ये उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया. ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वही नेगेटिव साइन के साथ छोटा हो जाता है. ठीक है, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ही उसकी कम वैल्यू होगी. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है. 5/3 इज ग्रेटर देन 2/3, बोथ आर पॉजिटिव, but if you take negative sign, so this order will be changed. So -5/3 now less than to -2/3. Okay,
इफ सपोज रैशनल नंबर्स आर नेगेटिव बट विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, तब कैसे डिसाइड करेंगे? अभी तो यहाँ पर क्या थे, रैशनल नंबर्स डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे, ठीक है, तो हमने उनके नेगेटिव साइन को हटाकर डिसाइड किया। अब सपोज ये अगर डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट है तो कैसे डिसाइड करें? सी हियर द दीज टू आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ओके, सो ignoring their sign, the numbers are 3/8 and 2/3 which are unlike rational numbers और unlike fractions, ठीक है। तो जब हम unlike fractions को हमें कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उनको like बनाते हैं, like fractions में चेंज करते हैं, ठीक है। like में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, 8 and 3 का LCM निकालना है। सो 8 और 3 का LCM क्या होगा, 24, ओके, 8 3 जा 24। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 3/8 का हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 24 हो। सो 3/8 को क्या 24 बनाना है यहाँ पर 8 की जगह। सो 8 3 जा, इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2/3 को 3 को यहाँ क्या बनाना है, 24। सो 3 8 जा, जो भी आपका एलसीएम निकल के आ रहा है उसको बनाना है। तो देखिए कितने टाइम्स वो एलसीएम है। सो 3 × 8 इज 24। सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई हियर ऑल्सो। सी 3 3 जा 9 अपॉन 8 3 जा 24। हियर 8 2 जा 16 अपॉन 24। नाउ दीज आर लाइक, दोनों ही के डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गए। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को देख के चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो देखिए 16 इज ग्रेटर देन 9, 16 इज ग्रेटर देन 9, दैट्स वाई द होल फ्रैक्शन 16/24 विल बी ग्रेटर देन 9/24, ओके। अब देखिए पॉजिटिव है, अब अगर यहीं हम नेगेटिव साइन लगा दें मीन्स 9/24 और यहाँ पर -16/24, तो यही जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले ये ग्रेटर था, उल्टा होकर यहाँ ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए -9/24 क्या है, -3/8 ही है। इट मीन्स -3/8 इज ग्रेटर देन -2/3, ओके। -3/8 इज ग्रेटर देन -2/3। ओरिजिनल आपकी यही है। तो जब भी आपको नेगेटिव दे रखे हो, नेगेटिव रैशनल नंबर और विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करिए, उनका एलसीएम लेकर, ठीक है। एलसीएम लेकर आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द डिफरेंट रैशनल नंबर्स, ओके।